दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। These days we are doing a joint study on Ashtavakra Gita. Friends, this is our 14th video on the subject 17-01-14। आज हम लोग पहले चैप्टर के सूत्र नंबर 5 पे बात करेंगे। दोस्तों सच अनूठा ही है अष्टावक्र जी का ज्ञान। बस आँख तो खोल, कहीं जाना नहीं है। तू है ही वहां। Now, no one can refute such a statement, such a truth. And for no one is it possible to follow it, understand it, adapt to it. That was the challenge then. तू विश्व साक्षी है, सुखी हो, बस इतनी सी बात। सच दोस्तों, भारतवर्ष ने सच्चाई को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि इतने युग बीत गए, अभी तक मानव इसे समझ तक ठीक से नहीं पाया है। That is why I always stress it is only an Indian professional who can. We must respect our blessedness. We must respect our heritage. Sure, we have the best of challenges to fight, the best of challenges to bear, and also the best of technologies to resolve. Friends, know your position. और दोस्तों, स्वाध्याय क्या होता है? Yes, we are the most hard-pressed generation till date. We have been bombarded with most new technologies to deal with. But friends, that has always been. What else do you expect? The world of objects is today at its most complex stage, and it ought to be so. And the world of subject is ever uncomplex, ever simple, pure. Also, the world of subject is ever engulfed in more and more falsehoods. So, we have the best of challenges to bear with and the best of technologies to solve with. Janak was now slowly getting set to Ashtavakra ideology. He was getting in line with thought directions. Ashtavakra's strata, his ambience was sedimenting in vision of Janak.
The process of knowing began for Janak. Janak felt amazed. All knowledge was already spread in front of him. Surprising that he could not assimilate it. What already laid with him as information was now precipitating as knowledge. How conveniently we gather information and start believing that it is knowledge. How easily we fall in the trap of ignorance. We feel we have gained knowledge, but we never attain it. There is no knowing. Our knowledge is only weight on our psyche. It is only further solidification of our ego. In our knowledge, there is no traverse, no transformation, no transcendence. Janak was getting clearer and clearer now. The whole of Vedanta, the whole lot, had been corrupted by our present. We have created so many loops that man is bound to move in circles for all times to come. Individual attainers are many, but none finds the words to communicate. Sure, Ashtavakra's genre is spellbinding. 0105 Na tvam vipradiko varno nashrami naksh gocharaha asangosi nirakaro विश्व साक्षी सुखी भवः। जनक ने पूछा है, हे गुरुवर, मैं तो वर्ण आश्रम के धर्म जानता हूँ। मुझे तो लगता है कि वर्णाश्रम कर्म का करना अनिवार्य है, जरूरी है। इसके बिना कैसे चलेगा? वर्णाश्रम के कर्म करने से आत्मा के विषय में विश्राम करके मुक्ति कैसे होगी? अब इस पर गुरु ने सीधा उद्घोष कर दिया है, तू ब्राह्मण आदि नहीं है, तू ब्रह्मचारी आदि किसी आश्रम में नहीं है। जनक के भीतर प्रश्न चलते ही जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, ये सब तो प्रत्यक्ष है। इस कारण आत्मा ही वर्णश्रमी है। गुरु फिर समाधान करते हैं कि आत्मा का इंद्रिय तथा अंतःकरण करके प्रत्यक्ष नहीं होता है, और जिसका प्रत्यक्ष होता है वह देह है। जनक फिर प्रश्न करता है, तो क्या मैं वस्तु हूं? अष्टावक्र
पुनः समाधान करते हैं कि तू असंग है। मतलब देह आदि उपाधि आकार रहित विश्व का साक्षी आत्मस्वरूप है, अर्थात तुझ में वर्णाश्रम पना नहीं है। इस कारण कर्मों के विषय में आसक्ति न कर, तू चैतन्य रूप आत्मा के विषय में विश्राम कर, परमानंद को प्राप्त हो। विप्र आदि को, you do not belong to the Brahman or any other caste or to any ashram. These four well-known stages of Hindu's life: the student life, the householder's life, the forest life, and the life of renunciation. You are not perceived. That is never an object of sense knowledge. That is what you are. You are not perceived by eyes. You are unattached, formless. So what you are? You are the witness of all, the whole world. Be happy. Realize yourself and be happy. जनक के दिमाग में, मन में गूंज रहा था कि पहले तो बात करते थे कि तुम मटेरियल आदि नहीं हो। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तुम नहीं हो, तुम देह नहीं हो। देह को पृथक करने की बात करते थे। अब तो तुम्हारे फंक्शनल अस्तित्व को भी नकार दे रहे हैं। गुरु जी के कथन तो उद्घोष हैं। Their outbursts never heard till date. सच्चाई जनक के भीतर गूंज रही थी। सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण निराकार आत्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, परंतु घट में, मठ में ऐसे अनेक उपाधियों में घटाकाश, मठाकाश जैसा व्यवहार होता है और उपाधियों के भेद से आकाश में भी भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आकाश में तो भेद है ही नहीं। बस बिल्कुल ऐसे ही एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा में तो कोई भेद है ही नहीं। जैसे अनेक घटों में आकाश एक ही है, परंतु किसी घट में तेल भरा है, घी भरा है, पानी भरा है, चावल भरा है। इन वस्तुओं का वास्तव में
यद्यपि आकाश से कोई संबंध तो नहीं है, परंतु फिर भी इन घटों को ऐसा ही प्रतीत करते हैं हम लोग कि ये तेल का घट है, ये पानी का घट है। वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि परस्पर के अध्यास से वह सुख दुख आदि धर्मों वाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुख आदि किसी भी काल में है ही नहीं। ऐसे अष्टावक्र जी जनक को समझाते हैं, हे जनक, तू ब्राह्मण आदि जातियों वाला नहीं है और तू वर्णाश्रम आदि धर्मों वाला भी नहीं है, और ना ही तू किसी चक्षु आदि इंद्रिय का विषय है। तू इन सब का साक्षी है, इनका विटनेस है, इनको देखने वाला है, इनको ऑब्जर्व करने वाला है। यू आर नथिंग बट द मास्टर ऑब्जर्वर। तू इन सब का साक्षी है और असंग है। तेरा इनके साथ कोई संग नहीं है। अरे मन का आंख से क्या संग है? एवं तू आकार रहित है। तू संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा तू अपने को जान करके सुखी हो जा, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो जा। दोस्तों, यहाँ पे जनक जी कहते हैं, हे भगवान, वेद ने जो वर्णाश्रमों के धर्म करने का विधान बताया है, यदि मैं उसका ही त्याग कर दूंगा तो मेरा पतन ही होगा, और बिना अपने को कर्ता माने ये धर्म कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हे प्रभु, ये प्रसंग, ये न्याय आदि का जो डिक्टेट है, ये सब कैसे दूर हो? इस पे अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, वेद ने जितने वर्ण आश्रम आदि के धर्म कहे हैं, वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिए हैं। बस उनके लिए ही कहे गए हैं। ये सब धर्म ज्ञानी के लिए और मुमुक्ष के लिए नहीं है। यही है दोस्तों आत्मज्ञान की सच्चाई। अभी जनक बहुत नजदीक से समझ रहे हैं। अष्टावक्र बता रहे हैं, जो आत्मज्ञान रूपी अमृत पाके तृप्त है और जो आत्मज्ञान पाने वाला ही है, वो तो कृतकृत्य हो चुका है। उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं रहता। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने अभी भी, तो फिर वो आत्मविद नहीं हुआ है। वेद में, शास्त्र में ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का
अभाव कथन करते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके वर्तता है। जिज्ञासु के ऊपर भी कर्मकांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है। इसलिए जनक, यदि तू जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्ण आश्रम के धर्म करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि तू लोकाचार करने के लिए करना चाहता है तो उनकी आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान के तू कर। दोस्तों, ये विप्र अब तो हम जानते हैं, बस वही है कि इसको मान लें और इससे आगे बढ़ जाएं। ये विप्र आदि व्यवस्थाएं हैं, समाज को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई हैं। तुम्हारे लिए, जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए नहीं है। एंड फ्रेंड्स, टू अस इट इज एविडेंट ऑल्सो। जातियां हैं, इट इज श्योरली समथिंग टू डू विद स्किल डेवलपमेंट। ये आज का विषय है, आज का सब्जेक्ट है। यदि हमारे भारतवासियों में स्किल्स ना होती तो फिर ये मूर्ति कलाएं, ये मंदिर पुराने, और आप स्टडी कीजिए दोस्तों, ये विद्याएं, ये ज्ञान, ये संगीत, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये पंचांग, ये ज्योतिष, ये नक्षत्र का ज्ञान, ये मेडिसिन, ये सब कैसे होता दोस्तों? अरे हमारे तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा, ओपन सीक्रेट में हमने देखा कितना साइंटिफिक है। बेटी का, लड़की का ब्याह अपनी ही जाति में हो, अरे किसी दूसरी जाति में जाएगी तो उसे तो परेशानी होगी ही, उन लोगों को भी परेशानी होगी, छोटी सी बात है। और किस जाति में, किस पर्टिकुलर स्किल में, दूसरे वे में देखो तो ब्राह्मण आदि नहीं है, और उस समय ही सेम गोत्र में शादी नहीं होगी। ये तो आज हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। फैमिली लीनिएज से हटा के यदि शादियां हों तो स्किल और भी विस्तृत होगी, और भी बृहद होगी। ऐसा था हमारा तब का समाज शास्त्र। ये स्वाध्याय, ये अध्यात्म, इस कदर दोस्तों, कब थी ये अष्टवक्र जनक की मुलाकात? ज्यादा ना भी सोचें तो सामान्य ज्ञान के हिसाब से तो रावण युद्ध उसके बाद हुआ, और पूरी की पूरी महाभारत उसके बाद हुई, और उसके बाद कलयुग आया। इतना तो हम समझते ही हैं। और फिर कलयुग के भी कितने वर्ष के बाद मुगल्स आए, आतंकी। आज पूरे विश्व में इसकी वार्ता है, बच्चा बच्चा जानता है। और फिर हमारे यहाँ तो अंग्रेज आए, सब जानते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने आज से कोई 200 वर्ष पहले हेल्थ सेंसस किया देश का, ये भी हम सबको पता है।
दोस्तों 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज डिक्लेयर्ड टू बी हेल्दी, स्वस्थ पाए गए। तब उन्हें पता चला कि स्वस्थ की हमारे यहाँ परिभाषा है जो स्व में स्थित हो। एज पर द ब्रिटिशर्स सेंसिस, they found that 75% of Indians were established in the स्व, स्वस्थ थे। ये स्वस्थ एक पॉजिटिव चीज है, ये उन्हें मालूम ही नहीं था। पहले तो बस यही मालूम था कि आप अनहेल्दी नहीं हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप हेल्दी हो। ये स्व में स्थित हो आप। यह है दोस्तों अध्यात्म की गरिमा। कुछ वर्ष पहले ही हम सो कॉल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को, पढ़े लिखों को यह बात समझ में आनी ही चाहिए, आती ही है। फिर मैकॉले आया, 20 वर्ष उसने और उसकी टीम ने पूरे इंडिया में स्टडी की और क्या पाया, कितना पाप होगा उसके मन में, उसके बुद्धि में। एक इवॉल्व था वो वेस्टर्न वर्ल्ड का दोस्तों, और हम थे एक इवॉल्व ईस्टर्न वर्ल्ड के, कि इनकी गुरुकुल व्यवस्था को ही खत्म कर दो, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों हमारे यहाँ पर आश्रम थे, आश्रम हैं जीवन की पद्धति के लिए, मानव जीवन के चरण हैं ये, और ये एविडेंट है दोस्तों, हम जानते भी हैं। व्यवस्था है ये, एक समझने का सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है ये समाज का। हर एक इकाई से लेकर पूरे समाज की व्यवस्था है इसमें दोस्तों। जीवन पद्धति है, एक जन्म से लेकर के पूर्णतया का मार्ग है ये। ब्रह्मचर्य का अपना धर्म हुआ, गृहस्थ का अपना धर्म हुआ, वानप्रस्थ में आया हुआ मानव अपने ही बच्चों को, अपने ही पूरे गांव के, पूरे समाज के बच्चों को गाइड कर रहा है। वो अब गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, वो अब गुरुकुलों से वापस आए हैं, जीवनचर्या चल रही है, सुदृढ़ हो रही है। और वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जाकर के वापस जो ब्रह्मचर्य में हैं उनके गुरु बन रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, और नहीं तो जो जीवन में सीखा है उसकी जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, यदि उसके लिए कुछ वर्क करना है, कुछ साइंटिफिक वर्क करना है, कुछ लैब वर्क करना है, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, तो वापस गुरुकुलों में आपके पास समय भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, शिष्य भी हैं, लैब्स भी हैं। वो ज्ञान वापस अपने समाज को दे करके आप खुशी खुशी जा पा रहे हैं। ये थी दोस्तों, ये हैं हम लोगों के भारत की व्यवस्थाएं। ऐसी है अध्यात्म की पावर। ये है स्वाध्याय की शक्ति, इसे हमें जानना चाहिए। स्वाध्याय तो करते ही हैं, मैनेजमेंट के रूप में भी करते हैं,
कि कैसे ये काम कर लेना है, कैसे दूसरे को चीट करना है, कैसे दूसरे को गुमराह करना है, कैसे खुद को चीट करना है, गुमराह करना है। ओके फ्रेंड्स, छोड़ो इसको। तो अष्टावक्र बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि अब तू जिज्ञासु हुआ तो तेरे लिए कौन सा वर्ण हुआ, कौन सा आश्रम हुआ। तेरे लिए तो पहल स्वयं को जानना है और उसमें स्थित होना है और सुखी होना है। ये ही अकर्म, अकर्ता, अभोक्ता अपने आप तू हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे अब जनक को समझ में आने लग पड़ा था क्यों ये समाज शास्त्री दूर दूर से इस यज्ञ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दोस्तों, आज की भारत की जो व्यथाएं हैं, these wars are imposed on us even to date. The solution is in first knowing our own true self. Even this day, we are fighting this social menace. दोस्तों, हमने बताया ना आपको कि चैलेंजेस भी बड़े हैं तो टूल्स भी, टेक्नोलॉजीज भी बड़ी हैं दोस्तों। वी कैन, बट द वे इज क्लियर, वे इज सिंपल, वे इज known to us. That is what at Open Secret we keep on saying again and again. तू विश्व साक्षी है, जान और सुखी हो। विश्व साक्षी सुखी भवः। विश्व साक्षी एक ही है और वह तू है। Okay friends, thank you very much. I'm pretty sure you would have liked the explanations given by Open Secret to these deep sutras of Ashtavakra. Please give this video a like. Please share it with your important contacts. Yes, in the process, our viewership will be enhanced. And we thank you for the same. Thanks, friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May He bless us all. Thank you, friends.